Hello everyone. Now we are going to see the pretty good privacy, another important part for email security. PGP provides a confidential and authentication service that can be used for electronic mail and file storage application. Pretty good privacy. Okay, pretty good privacy. It is a one technique for email security which provides the confidentiality and authentication service for your electronic and file storage application. Uh, there are a number of reasons can be cited for this growth because email is available free for worldwide. It is based on the extremely secured algorithm, wide range of applicability, not developed by any governmental organization. So then several number of reasons where we have to provide the confidential and authentication. How we are going to this authentication done? PGP, how PGP works? It consists of a five services. It provides the five services that is authentication, confidentiality, compression, email compatibility, and segmentation. Let's see one by one. Authentication in PGP. First of all, sender creates a message. Second, senders create a message that is M denoted by the M. मेक एस एच ए 1160 बिट हैश ऑफ मैसेज जो भी आप लोगों का एस एच ए वन है एस एच ए वन सॉरी एस एच ए वन जो 160 बिट मैसेज डाइजेस्ट जनरेट करता है सिक्योर्ड हैशिंग एल्गोरिदम वन इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट encryption or authorization algorithm where 160 bit hash value is generated. So over here, see the message M, we are going to generate the 160 bit hash message. Attach RSA sign hash message जो भी आप लोगों का PR या फिर हम लोग प्राइवेट की यूज़ करके RSA जनरेट करके हम लोग जो वैल्यूज उसमें ऐड करते जाएंगे EP नई वैल्यू जो बनाते जाएंगे. Again, it will send to the receiver side. Receiver side decrypts and recover the hash code, and then receiver verifies the received message hash. जो भी आप लोगों को वहाँ पर मैसेज मिलेगा वो यहाँ पे हैश जनरेट करेगा और इसको आप लोगों के नए हैश वैल्यू के साथ कंपेयर करके वेरीफाई करेगा. ओके, सो दिस इज हाउ ऑथेंटिकेशन डन. क्या क्या होगा? मैसेज क्रिएट होगा, एस एच एल्गोरिदम के थ्रू डाइजेस्ट वैल्यू जनरेट होगी, उसके साथ आर एस ए साइन मैसेज आप लोगों का सेंड किया जाएगा, फिर रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा उसको और रिकवर करेगा उसका हैश कोड, और दोनों हैश कोड जो नया और ओरिजिनल या फिर नया न्यूली जनरेटेड हैश होगा वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके वेरीफाई करेगा, दैट इज ऑथेंटिकेशन करेगा. देन हाउ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड. सेंडर फॉर्म्स 120 बिट रैंडम सेशन की. जो सेंडर होगा वो एक सेशन की जनरेट करेगा 128 बिट का. जो मैसेज होगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा उस सेशन की के साथ यहाँ पे सेकंड स्टेप में. देन अटैचेस सेशन की इनक्रिप्टेड विद द RSA. सेशन की जो है वो RSA के साथ फिर से इनक्रिप्ट किया जाएगा यूजिंग RSA एल्गोरिदम जिस सेशन की अटैच विद द मैसेज इज इनक्रिप्टेड. Again, at the receiver side, it decrypts and recovers the session key, and session key is used to decrypt the message. ओके कैसे काम करेगा? मैसेज जनरेट होगा, सेशन की जनरेट होगी, सेशन की के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे, उस इनक्रिप्टेड सेशन जो भी सेशन की होगी उसको इनक्रिप्ट करेंगे, फिर सेंड रिसीवर साइड पे पहले सेशन की रिकॉर्ड होगी और उस सेशन की का यूज करके मैसेज रिकॉर्ड होगा. सो दिस इज हाउ यू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी. नाउ बोथ ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियल वहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बोथ सर्विसेज ऑन सेम मैसेजेस से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ. And compression, last one is the compression. You know that compression means reducing the amount of your message. By default PGP compresses message after signing but before encrypting. PGP compress करता है messages को, कब करेगा? आफ्टर साइनिंग करने के बाद, बिफोर इनक्रिप्टिंग, इनक्रिप्ट करने के पहले और साइनिंग करने के तुरंत बाद. So we can store uncompressed message and signature for later verification, and because compression is non-deterministic, we use the zip compression algorithm for the same. जो messages होते हैं वो zip करके आप लोगों के फिर वहाँ पर भेजे जाते हैं, compress करके आप लोगों के आगे भेजे जाते हैं. See, email compatibility. When using PGP, we'll have a binary data to send encrypted message.
पीजीपी जो होगा वो आप लोगों का बाइनरी डेटा यूज कर देगा। जो भी आप लोगों के फाइल्स जनरेट हुई होगी उसको इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म एंड देन इट विल सेंड टू द डेस्टिनेशन साइट। हाउएवर ईमेल वाज डिजाइन ओनली फॉर टेक्स्ट। जो ईमेल था वो नॉर्मली वहाँ पर टेक्स्ट के लिए डिजाइन होता है। सो ईमेल जो होते हैं उसमें नॉर्मली टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, बट for that reason we use our printable ASCII characters are encoded in PGP. PGP encodes the raw binary data by using the ASCII characters. Okay, and then Radix 64 algorithm, जैसे हमने देखा था base 64 algorithm for each and every 64 numbers are given and the specific number consists of alphanumeric or numeric value. So it maps the 3 bytes printable character and appends a CRC, cyclic redundancy check, to it. So this is how compatibility issue will solve. And PGP also segments messages if too big. अगर आप लोगों के वो मैसेज बहुत बड़े होते हैं तो उसको वो सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आगे आप लोगों का सेंड करता है। So this is how एक summary देख लेते हैं हम लोग। This is a file, for example, if signature is required, we are going to generate a signature for the same. कोई ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे। अगर सिग्नेचर है तो सिग्नेचर न्यूली फाइल जो बनेगी उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है, यस। अपने को कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। न्यूली जनरेटेड कंप्रेस्ड मैसेज विद अगेन इंक्रिप्टेड आफ्टर साइनिंग एंड बिफोर इंक्रिप्शन वी आर गोइंग टू असाइन अ सिग्नेचर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कंप्रेशन कब होता है, आफ्टर साइनिंग एंड बिफोर द इंक्रिप्शन। नाउ जो भी जनरेट होगा उसको हम लोग 64 बी रेडिक्स 64 बेस में कन्वर्ट करेंगे। रिसीविंग एंड पे वो जो भी है वो वाइस वर्सा प्रोसेस आपकी फॉलो अप की जाएगी। जैसे 64 बिट डेटा आएगा तो उसकी कॉन्फिडेंशियल वहाँ पर आपको डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको फिर डिकम्प्रेस करना है एंड देन आइडेंटिफाई द सिग्नेचर एंड वेरीफाई द ओनर। ओके, एंड दिस इज हाउ द पीजीपी ऑपरेशन वर्क्स। अब इसमें आप लोग एक और कंसेप्ट भी है, पीजीपी सेशन कीज, जो कि होती है आप लोगों की वेरी साइज में हो सकती है। 56 बीट डीएस हो सकती है, 128 बिट कास्ट हो सकती है, या 168 बिट ट्रिपल डीएस हो सकती है। और आंसी एक्स 12.17 मोड में ये जनरेट होती है। तो these are the additional part for your public and private keys। PDP में public private keys क्या होंगी? तो since many public private keys may be in use to then need to identify which is actually used to encrypt the session key। बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट कीज हम लोग यूज करते हैं तो उनमें से कौन सा हम लोगों को सेशन की को इनक्रिप्ट करने के लिए चाहिए होगा। सो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो rather use a key identifier based on the key is least significant 64 bits key is used। ये 64 bits का जो यूनिक आइडेंटिफाइंग होगा की होगी जो हम लोग नॉर्मली वहाँ पर यूज़ की जाती है। कुछ ऐसा हम लोगों का वो फॉर्मेट हो सकता है, देखो यहाँ पे। तो की आईडी इज देयर फॉर रिसिपिएंट्स पब्लिक की, सेशन की इज जनरेटेड, टाइम स्टैम्प इज देयर, की आईडी फॉर सेंडर, की आईडी फॉर रिसीवर था या फिर की आईडी फॉर सेंडर, मैसेज डाइजेस्ट, फाइल नेम, टाइम स्टैम्प एंड वट एवर द डेटा। सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ योर मैसेज फॉर्मेट ऑफ योर पीजीपी। ओके, और एक्चुअल पीजीपी फॉर्मेट ये इस तरह से होता है। ओके, so go for it, most important part of your syllabus।